Radhe Radhe everyone. So today we'll start the fundamentals of programming playlist. Okay. So maybe it will be a playlist or will be a crash course or a complete a long video. सो यहाँ पे यार हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे. देखो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट योर डीएसए जर्नी योर कोडिंग जर्नी, सो आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो है ये फंडामेंटल्स ऑफ की कोडिंग है, प्रोग्रामिंग. ठीक है, अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो बट आपके फंडामेंटल्स अभी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो यू डोंट नो और यू मे स्टक सम टाइम, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस. आई विल dictate each and everything with the help of my these handwritten notes which I made during my college journey. So these will cover the fundamentals, okay, that you must know before starting the coding. And if you know these, that how these things works basically, so you'll definitely get a interest while doing the coding or while doing the hard stuff. Okay, so these are the fundamentals. Okay, here we will discuss about what is variable, what is constants, what are operands, what are operators, different type of operators we will discuss. We'll also discuss the basics of array strings. Okay, so this is a video which you should go through before starting, or if you have started, so you even then you can watch it to have a crystal clear understanding of the fundamentals. And if your fundamentals are clear, so you'll definitely getting a good grasp while you are doing the questions of like DP or design and all that. Okay, so these are the fundamentals we'll discuss today. So let start. We'll start from the. So this is basically C language. Why C language is important? Before knowing it, first see what is database. See, if you are going to start coding, we'll see variables and constants and about coding stuff, operators and array string we'll also see. But first, you should also know what is this database. You may listen to what is database and all that. Okay, so what is this database? Database is basically the collection of data information. Okay, that is basically stored in your computer system. So database is basically nothing, the collection of data. Now what is data? Data can be anything. Data can be anything, a raw thing, a raw form, like if you are having anything. Data is like your images, your videos, your content. Okay, this everything is data. Okay, this video is also a data. YouTube containing lots of videos, your Twitter containing lot of tweets, Insta containing lots of posts. So this is basically the data. So database is the collection of this data and information. Now the database is systematic collection of data. Now what is this DBMS? DBMS is basically database management system. Like we have this database which is the collection of this data. Now to manage this data in database we need a system, and the system is database management system. Now there are so many database management system like MySQL, Microsoft Access, SQL Server. There are so many. Now it basically help control access to a database by various users. So DBMS is clear to you, is basically the management system which is used to manage the database. Database you understand, DBMS you understand. Now SQL is very famous. If you are a fresher, if you are starting your coding journey, if you are a college student, so you may listen about SQL. Okay, so SQL will be there in your syllabus also. And like SQL is very famous. Okay, you must know it. So SQL, what is this? It is a structured query language. Now it is used to query a database. See, there is a hierarchy. You have a database which is a collection of data. Now to manage that data you have a particular system, that is DBMS, that is database management system, like MySQL and these different there are different, like MySQL, SQL Server, Microsoft Access, Fox Pro. There are so many, Oracle. Now you have database, you have DBMS. Now a language is required to interact with the database, and that is the SQL, structured query language. See, it is not a programming language, it is a structured query language. It is simply the English language, you can say, like we use select statements, insert statement, update statement. This is not a programming, this is a very simple language, this structured query language. Now this is used to interact with the database, used to query a database. Like we can select the data, we can insert the data, we can update the data, we can delete the data. Okay, so this is about SQL. So database, DBMS and SQL, you have an idea now. So see, this is the fundamental, we are discussing about the fundamentals. Okay, so we are not going into a deep dive, we are only just understanding the terms. Okay, this is the meaning of fundamental is your fundamentals are clear, you know what is DBMS, what is database, what is SQL. Okay, so this is all about.
Now these are some keyword keys which I noted down in my notes when I was studying in my college, so you can just go through. I will provide the notes in description box, you can go through them. Now before going through the programming fundamentals, let's first understand the application. There are two types of application. First is standalone application, another is web application. So standalone application, like, must be installed. Must be installed means we'll see. No need to install. Web applications are no need to install. They are compatible with a single operating system. They are independent of operating system. Okay, VLC and other. Okay, see, like, standalone applications are the applications which you need to download in your, so like, एग्जांपल लो अपने लैपटॉप का. आपके लैपटॉप में जो क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, वीएलसी वगैरह जो होते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन. वाई? Because you need to install them. They're not by default present in your system. Okay, you need to install them. Or like, there is not any particular website that by which you can simply use the VLC or all these stuff. Okay, so you need to install them. And second point is they're compatible with single operating system. This is the point which you saw now, that whenever you are downloading something, so you saw that the website asks you that you want to download it for the Windows, Mac, or another operating system. So these are different from different operating system. Like for Windows you have another, for Mac you have another version, and for another operating system you have another versions. So standalone application is basically must be installed and they are compatible with operating systems. Web applications like facebook.com, gmail.com, like for example you will go to facebook.com, simply. Okay, so now you can basically simply log in, sign up with your ID, and you can use it. So they are independent of a same, like I am using for Facebook in here, my this window, and you can also use it in Mac or another operating system. So the example is Facebook and Gmail. This is a web application. Why standalone application are compatible with single operating system? This may be a good question. That why the standalone application are compatible for single operating system? Because of different extension here. Why? See, in Windows when we design a software na, so that software .exe is basically software. So in Windows, if we have a software, it is having an extension that is .exe. When we talk about the Mac, that is a Apple's operating system, so the extension is .dmg. When we talk about Linux, so it is rpm.tar, and this is all. मुझे लगता है अभी आपको इसमें डाउट्स होंगे व्हाट इज़ दिस. बट जैसे जैसे आप चलते जाओगे ना, जैसे आप सीखते जाओगे अपनी कोडिंग जर्नी में, अपनी इसकी आईटी फील्ड में जैसे जैसे चलते जाओगे, सो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वही .exe फाइल होता है. जो सॉफ्टवेयर होता है .exe फाइल होती है, ठीक है. तो विंडोज़ के लिए ये होती है, सबके लिए अलग होती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होती है. इसलिए जो हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है जिनको हम इंस्टॉल करते हैं, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है. क्यों? मेरा विंडोज़ है, ठीक है, मेरा विंडोज़ है, मैं कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डाउनलोड करने गया, जैसे वीएलसी गया, तो मैं अपनी विंडोज़ में .exe वाली तो करूँगा. अगर मैं .dmg वाली कर लूँगा तो चलेगी नहीं, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है. अगर मेरा मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं .exe थोड़ी करूँगा, .dmg वाली करूँगा. सिंपल. नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. ये टर्म देखते हैं बाद में, अभी समझ नहीं आएगी, बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी. So by using C, C++, we can develop standard application because these are platform dependent. Getting my point? With the help of C, C++, we can build the standalone application. Now all other languages like Java, Android, .NET, we can develop both applications standalone as well as web because these are platform independent. अब ऐसा क्यों? ये ऐसा है, देखो, सी प्लस प्लस, जावा जो ऐसी लैंग्वेज है ना, जैसे सी प्लस प्लस का भी हमने डिस्कस करा कि हम उनसे सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं. जावा से हमने डिस्कस किया कि हम उससे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन दोनों बना सकते हैं. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी सी प्लस प्लस है ना, इट इज़ डिपेंडेंट किस पे? प्लेटफॉर्म पे. प्लेटफॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ रहे हो? और जो जावा है उसका मेन फीचर ही ये है क्या, कि वो इंडिपेंडेंट है किस पे? प्लेटफॉर्म पे. प्लेटफॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी देखो, इंटरेस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं बना होगा क्योंकि मैंने इंग्लिश में सारी बातें की हैं. अभी मैं थोड़ा हिंदी में इंटरेक्शन करता हूँ जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है. द मोटिव इज़ नॉट टू डिस्कस इन इंग्लिश इन अ फैंसी लैंग्वेज, नो. द मोटिव इज़ टू मेक यू थिंग्स क्लियर. ओके, द मोटिव इज़
टू मेक यू थिंग्स क्लियर, आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश में बोलना हो, हिंदी में बोलना हो, कोई और देसी भाषा में बोलना हो, आपको समझ आना चाहिए। दिस इज़ माई मेन पॉइंट, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़, ओके। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मेन। देखो जब आप सी प्लस प्लस जावा पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे बड़ा जावा का प्लस पॉइंट यही होता है कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म का। अब प्लेटफॉर्म क्या है, मैं पूरी कंप्यूटर की 4 साल की बीटेक की अगर आपकी जर्नी है, या एमसीए की, बीसीए की, जो भी जर्नी है ना, उसमें याद रखना कुछ टर्मिनल होती है, जैसे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इफ समवन इज सेइंग इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो उसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो ना। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। नाउ सम बेसिक टर्म्स लाइक फाइल, फाइल बेसिकली अ बंडल, डेटा bundle, and file in a the file is a software, that is .exe. Now what is program, a set of instruction, what is process, the execution of program। ये बेसिक टर्म्स हैं, फंडामेंटल्स, तभी मैंने इस पीडीएफ का नाम दिया है, ठीक है। और वीडियो का भी नाम यही है, ये प्लेलिस्ट है या जो भी क्रैश कोर्स बनेगा पता नहीं, अभी तो मेरे को भी प्लेलिस्ट में अपलोड करनी है या फिर एक कंप्लीट वीडियो बना के डाल दी है, बट जो भी है फंडामेंटल्स हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ तुमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो तुम्हारा प्रोग्राम है। प्रोसेस क्या है यार, वो जो प्रोग्राम है वो जब अंडर एग्जीक्यूशन है तो वही प्रोसेस है। गेटिंग माई पॉइंट। अब हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टेक्स प्लेस, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मान लो सी प्लस प्लस का छोटा सा प्रोग्राम मान लो यार, किसी का भी मान लो, कोई भी प्रोग्राम है, जैसे मान लो यही प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सा सी प्लस प्लस। अब जो तुम्हारे प्रोग्राम है, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ये प्रोग्राम है, इसमें क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। भाई पहले इंस्ट्रक्शन, इसमें तो नॉर्मल हम कुछ नहीं कर रहे, प्रिंट करा रहे हैं, तो इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है प्रिंट कराने की, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रोग्राम। अब ये तो हो गया प्रोग्राम। अब देखो तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल भी दिख जाएगा, दिस इज योर प्रोग्राम, व्हाट इज इट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखना, दिस इज while when this rotate symbol is going on, that time what is happening, process, अगेन इट इज प्रोसेस। व्हाट, जो तुम्हारा ये प्रोग्राम था वो जब अंडर एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन में है ना, ये प्रोसेस था, ठीक है ना, आगे समझ। जब तुम्हारा ये जो प्रोग्राम था इट इज़ अंडर एग्जीक्यूशन, सो दिस इज नोन एज प्रोसेस। सो प्रोग्राम, प्रोसेस, नाउ बोथ आर क्लियर टू यू। नाउ हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का होता कैसे है। अब यार होता ये ऐसा है कि ना, तुम्हारी हार्ड डिस्क, तुमने सुना होगा एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिसको हम एस भी, आजकल एस आने लगी है, और तुम्हारी रैम होती है। अब तुमको ये बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए, व्हाट, कि जो तुम्हारा सीपीयू है ना, दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द रैम। वो जो तुम्हारा सीपीयू है वो इंटरेक्ट सिर्फ रैम से करता है, वो हार्ड डिस्क से या तुम्हारी एसएसडी से इंटरेक्ट नहीं करता है। एसएसडी हो गई बड़ा स्पेस, ठीक है, अब जहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ जो भी रखा हुआ है। अब जो चीज़ तुमको चाहिए, जो चीज़ तुमको एग्जीक्यूट करानी है, पहले तुम उसको रैम में लाओगे। क्यों लाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा सीपीयू डायरेक्टली रैम से इंटरेक्ट करता है, हार्ड डिस्क के थ्रू नहीं करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही होगा, स्टेप वन क्या, कि हार्ड डिस्क से तुम्हारा कॉपी होगा रैम में। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, वो तो बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होगी। तो पहले तुम्हारा हार्ड डिस्क से प्रोग्राम रैम में आएगा, रैम में ही जैसे आएगा तो जो तुम्हारा सीपीयू है वो उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब सीपीयू के अंदर यार चीज़ें होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये तो बेसिक चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो भी कोई नहीं, अब देख लो, अब पढ़ लो। तो ये तुम्हारा सीपीयू है, प्रोसेसर, उस वो तुम्हारे प्रोसेस को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और वो तुम्हारा इजीली रन हो जाएगा। समझ आ गया, तीन ही स्टेप हैं, कुछ नहीं है। हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में तुम्हारा प्रोग्राम था, उसी में होता है, उसको हमें रन करना है। रन हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क से कर नहीं सकते, एसएसडी से कर नहीं सकते, उसके लिए हमने उसको कॉपी किया रैम में। जैसे ही रैम में कॉपी किया है तो जो हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। सो यही सिंपल होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टेक्स प्लेस। ये पता होना चाहिए, थोड़ा आगे जब तुम जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। ये तो बेसिकली सी के ओरिएंटेड है, कोई नहीं, बट हम अब बात करते हैं बेसिक जो प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में। आइडेंटिफायर का जो मतलब होता है ना, आइडेंटिफायर मीन्स वर्ड्स, सॉरी, आइडेंटिफायर मीन्स वर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये सब आइडेंटिफायर है। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंट, डेटा, इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट, समझ रहे हो। जो डेटा है तुम्हारे, इन्फॉर्मेशन है, कॉन्स्टेंट है। देखते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स, देखते हैं इसके। प्राइमरी कांस्टेंट, अब यार प्राइमरी कांस्टेंट में जैसे इंटीजर हो गए, रियल हो गए, कैरेक्टर, यार कुछ नहीं है, कोई भी वैल्यू यार, कोई भी वैल्यू, 55, 25, 0, 7, 2, 3, 4, कोई भी। रियल में तुम्हारे पॉइंट वाले आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं सारे। कैरेक्टर में लाइक ए बी सी प्लस, स्पेशल सिम्बल्स वगैरह वगैरह सारे कुछ।
नाउ नोट में देखो एक -3 और 3.5 दीज आर नॉट द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. वाई? ओनली वन सिंबल शुड बी देयर बिटवीन सिंगल कोट्स. ओनली वन सिंबल, बट यहाँ पे दो हैं क्या, एक तो ये है माइनस का सिंबल और ये 3 है. जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है ना, दे मस्ट हैव सिंगल कैरेक्टर बिटवीन दी डबल कोट्स, बिटवीन दी कोट्स. जो तुम्हारे कोट्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही सिंबल होना चाहिए, वो हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहेंगे. इसको हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव टू कैरेक्टर्स देयर. ओके, so these are not your character constants, only one symbol must be there. So here we have two, so these are not character constants. So constant समझ आ रहा है ना. प्राइमरी कॉन्स्टेंट जैसे ऐसे देखे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, कुछ नहीं, नॉर्मल वैल्यूज है. अब बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट. सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेटर्स. ये सारी चीज़ें हैं जो तुम आगे व्हेन यू विल गो टू दी प्रोग्रामिंग, जब डीप डाइव जाओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे. कांस्टेंट समझ आ गया, नथिंग, अ सिंपल वैल्यू, कोई भी, ठीक है. वो इंटीजर हो सकती है, रियल हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, कैरेक्टर कांस्टेंट. बट कैरेक्टर कांस्टेंट में हमने एक चीज़ देखी है नोट में, तो ये चीज़ थोड़ी याद रखना, ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट. नाउ वेरिएबल. वेरिएबल क्या है यार? वेरिएबल कुछ नहीं है, कंटेनर हो गया जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है. ये लगाओ, किचन में जाते हो अपने, कंटेनर वहाँ होता है, कोई मान लो डिब्बा है, कोई कंटेनर है किसी चीज़ का, उसमें एक कंटेनर है, उसमें मान लो चावल रखे हैं, ठीक है, उसमें चावल रखें. एक कंटेनर है जिसमें दाल रखी है, ठीक है, तो उस कंटेनर को मान लो वेरिएबल, और जो उसमें दाल रखी है उसको मान लो क्या, वैल्यू. तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो कि क्या होल्ड करेगा, वैल्यू. तो वेरिएबल क्या है, हम लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2. सो ए जो हमारा है दैट इज वेरिएबल विच इज स्टोरिंग अ वैल्यू. वैल्यू क्या है, 2. सो ए इज ए वेरिएबल and 2 is the value. Definition is basically it is a container which stores a value, just like a kitchen in we have container to store rice, dal, etc. Similarly to that, in C programming, variable stores a value of a constant. कांस्टेंट अभी मैंने बताया था थोड़ी देर वाली, क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कुछ नहीं, वैल्यू होती है. कांस्टेंट क्या है, एक वैल्यू तो होती है. 5 3 4 2 1 0 -2 -3 -4 0.5 0.6 0.7 0.5 2.5 21.45, ठीक है. तो ये होती है वैल्यूज़. तो जो हमारा वेरिएबल है वो स्टोर करता है क्या, वैल्यूज़. सो वेरिएबल स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट. गेटिंग माई पॉइंट. एग्जाम्पल देख लो, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4.7. what is a and what is b? Variables. What is variables? Simple, nothing. Now there are some rules in programming. There are some rules for naming these variables. Here we are just discussing for C, but in most of the languages these rules are followed. That first character must be an alphabet or underscore. The variable's first character must be a alphabet or it can be a underscore. It can not be a any number. You cannot start a variable name with like 2a. 2a is not a variable, but you can start a name underscore a. ओके, आप अंडरस्कोर ए स्टार्ट कर सकते हो, आप ए इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, आप अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 7 लिख सकते हो, आप 2a इज इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते. 2 इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. समझ रहे हो? नो कॉमास ब्लैंक्स अलाउडेड. कोई कॉमा नहीं होना चाहिए. आप ऐसे नहीं लिख सकते ए कॉमा बी इज इक्वल टू 4. इट इज़ नॉट अ वेरिएबल. ओके, इट इज़ नॉट अ करेक्ट वेरिएबल. So you cannot use commas or you even cannot use blanks. No special symbol other than underscore. See, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं लिख सकते a hashtag is equal to 7. Here a is not a valid variable, so you cannot write a hashtag is equal to 7 or any special symbol you cannot use. Instead of only underscore can be allowed. Variable names are case sensitive. Case sensitive, you know that uppercase, lowercase, that is case sensitive. Like uppercase has a different meaning, lowercase has a different meaning. If you are writing small a is equal to 7, or if you are writing capital A is equal to 7, so these are different things. Capital A is equal to 7 or small a is equal to 7, these are both different things. Okay, so they are case sensitive, means lowercase have different meaning, uppercase have different meaning. So this is about variables. Now we'll talk about the keywords. Keywords are basically, these are some reserved words which are already known to your compiler, so you cannot use them as a variable. So there are basically 32 keywords when we talk about C language. So these are reserved words. Reserved words means you cannot use them as a name of any variable, name of any function. Okay, मीन्स आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो, ये पहले से ही रिजर्व हैं, कंपाइलर को इनका मतलब भी पता है.
जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कांस्टेंट। आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं मान लो मैं सोचता हूँ मैं इंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दूंगा, नहीं, क्योंकि इंट क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि पहले से ही असाइंड है, तो वो क्या है, कीवर्ड है। कैर यूज़ नहीं कर सकते आप, फोर यूज़ नहीं कर सकते, गो टू यूज़ नहीं कर सकते, इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, वाइल यूज़ नहीं कर सकते, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आप कभी भी अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, दे आर रिजर्व। सो उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बट पता होनी चाहिए आपको, इसलिए डिस्कस हो रही हैं सिर्फ, ठीक है। अब एवरी प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देखो आपको पता होनी चाहिए, क्या, कि कोई भी जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम यार ये प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, कोडिंग में यही प्रोग्राम होता है हमारा। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या, जो भी प्रोग्राम होता है ना, उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। जो मेन फंक्शन है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी। मान लो इस मेन फंक्शन के बाद जो भी लाइन लिखी है, पहले वही लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस मेन फंक्शन से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तुम्हारा मेन फंक्शन है, वहीं से तुम्हारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलम। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में तुम्हारा सेमी कॉलम हर एक जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड में लगाया जाता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द में होता है, बट कुछ में नहीं होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलम का कोई वो इशू नहीं होता है, बट तुम्हारी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, अगर सेमी कॉलम नहीं लगाया, हटा दिया, जैसे हटा के देख लेते हैं, वो दैट विल थ्रो अ एरर, ठीक है। तो एरर थ्रो कर दिया उसने कि भाई सेमी कॉलम नहीं लगाया, यू शुड यूज सेमी कॉलम। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस आर केस सेंसिटिव, या जो योर इंस्ट्रक्शंस है ना, ये भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मैंने ऊपर बता दिया था मीनिंग, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, यार दे आर गोइंग टू मीन्स दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि मान लो ये पहले स्टेटमेंट यहाँ तो एक ही लिखी है, बट मान लो इससे पहले एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखी होती, एक सेकेंड कॉपी करते हैं। हाँ, मान लो ये स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट, और इसको लिख देते हैं सेकंड। तो ये एक ऑर्डर में होंगी, पहले ये आ रही है ना, तो पहले यही एग्जीक्यूट होगी, दूसरे नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। रन करा के देख लेते हैं। रन करा के देखा हमने, तो पहले ये लाइन प्रिंट हुई है, उसके बाद ये प्रिंट हुई है। तो यही है कि जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होती है वो एक लाइन बाय लाइन ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो वही ये कह रही है लाइन, ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल था। उसके बाद कमेंट्स भी होती हैं कुछ, कैसे कमेंट्स, जैसे मान लो ये कमेंट होती है, सी में ये कमेंट होती है, सब में डिफरेंट डिफरेंट है। क्या ये करा, इससे क्या हो गया, कमेंट हो गया कोड। अब कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट कब यूज़ होती है, कमेंट बेसिकली हम चाहते हैं कि ये जो हमारी लाइन है वो रन ना हो, वो हमें कोड में सिर्फ दिखानी है, वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम उसे कमेंट कर देंगे। कैसे, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो ये लाइन है ये कमेंट रहे, सिर्फ ये प्रिंट हो, ये जो है टू वाली ये कमेंट रहे, ये मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करानी, ये सिर्फ मेरे को दिखानी है। तो इसको रन करते हैं, अब सिर्फ यही प्रिंट होगा, यही प्रिंट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब कमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या फिर कोई ऐसा कोड लिखोगे जो इंटरप्राइज लेवल है, प्रोडक्शन लेवल के लिए लिख रहे हो कोड, तो उसमें तुम कमेंट यूज़ करोगे। कमेंट में ये बताओगे भाई मेरा जो ये फंक्शन है ये काम करता है, मेरा ये प्रोग्राम है इसमें ये लॉजिक लगा है, ये जो मेरा फंक्शन है ये बेसिकली ये फैच कर रहा है, मेरा ये फंक्शन जो है ये इसमें ये चीज़ यूज़ हुई। मतलब कि तुमने कोई प्रोग्राम लिखा, दूसरे वो बंदे को समझाना है, तो उसमें तुम कमेंट यूज़ कर सकते हो ऐसे डाल के, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, एक तुम्हारे कोड को अंडरस्टैंडेबल बनाएगी, ठीक है, एफिशिएंट बनाएगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा किसी भी को। तो कमेंट्स ऐसे होती हैं, दो तरह की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट और तुम्हारी मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन जैसे अभी मैंने दिखाई, एक लाइन को करना है तो ऐसे डबल वो लगा दियो, तो उससे तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। मल्टी लाइन में तुम ऐसे सिंबल यूज़ कर सकते हो, उससे तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी। वो ये कमेंट्स जो होती हैं दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड और बेसिकली दे आर इग्नोर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हमने देखा वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद कमेंट्स देखा, आइडेंटिफायर देखे, और उससे पहले भी थोड़ा डीबी वगैरह का देखा, डीबीएमएस देखा, एसक्यूएल देखा क्या होता है, ठीक है। सो ये फंडामेंटल्स थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है।